In last session we discussed about power plant automation, in which we discuss about the detailed process of power plant and which philosophy used to control different parts of power plant. In today's session we will discuss about the DCS system and its architecture. I just try to convey a brief introduction about DCS. So stay connected, and in the end of this session we cover some questions from students so they can get their answer regarding job interview and DCS. So without wasting time, we start the presentation. In today's topic we discuss about the processing unit. We also call it as a controller, and different type of IO cards, and how DCS networks are works in industry, and different types of software like graphic software, historian and configurator. I just give some brief introduction because there are many manufacturer companies who use different graphics, historian and configurator software. And in last, we also compare between DCS and PLC, why both the systems are we call as a different system, and which type of difference are there. First of all, DCS, the full form of DCS is distributed control system. So by its name you can easily predict that it is a distributed control system. Means the control system is distributed in different parts. So as we discussed, DCS means distributed control system. So as per the name of DCS, you can easily conclude it is a various control system which is a distributed in a small parts. So from the diagram you can see this, it is a one system. Okay, so this system is controlled by this controller. Okay, this is a one separate system, so it is controlled by this particular controller. Now what happens in a complex plant, every system are dependent on each other more or less. For example, we discuss about power plant. So when you try to control air and gas system, the feed water system is also connected with air and gas system. So some signals are from air and gas system are also related with feed water system. Okay, so we cannot simply control entire system within a one controller, because it is a very large system and the requirement of input and output devices are very large. So for an example, I can say you, in typical power plant, almost 5,000 inputs and outputs are taken. Okay, so like you can say 3 to 4,000 are inputs and almost 1,000 are commands are given from DCS. So in brief, we see that there are so many sensors like RTD, thermocouple, transmitter, and all these. All these inputs are read by DCS IO card. This is called IO card. So first of all, sensor inputs are come into IO card, which is converted into digital form. This digital data is given to the processor. Now the processor is processed as per programming and then generate output, which is digitally communicated to the IO card. Okay, and then IO card is give command to the final control element. So like this, entire control loop is working. And other than this, all control systems are connected with each other by network. So you can see here a network. This green line is indicated as a network. Okay. Now this control system is controlled by the processor, but operator have to take some required action from the given PC. So this PC are also connected with the network. So now this controller and this PC all are communicate with each other via this network.
Okay, so operator can easily give command and check feedback from this computer. And if someone want to change the program, then they also can change the program from this computer by given dedicated software. Okay, so one by one we cover all the topic. First of all, we see field device, and then IO card, then processor, and then network. So in field device, first part is sensor. In sensor, there are mainly two type of sensor. First is DI means digital input, in which generally temperature switch, pressure switch, valve open or close feedback, motor run and stop feedback. So these all are DI. So when some particular temperature is arrived, the switch is acted and give a signal of 1 or 0. So simple, DI means digital input means 1 and 0. Okay, लाइक दैट अगर प्रेशर स्विच होता तो उसमें भी यहाँ के कोई पर्टिकुलर प्रेशर रीच होता है तो वो 1 सिग्नल देगा या फिर 0 देगा। तो सबके अंदर मोर और लेस क्या होगा, एक स्विच होगा, माइक्रो स्विच। अगर आप टेम्परेचर स्विच ले ले, प्रेशर स्विच ले ले, उसके अंदर एक माइक्रो स्विच होगा। जब भी वो प्रेशर के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो एक्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम उसको रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एन आई या एन ओ, नॉर्मली एन सी या एन ओ, नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन, कोई भी कॉन्टेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वाल्व में भी स्विच लगी रहती है। वो सिंपल ऐसा एक रोड रहता है, अगर वाल्व ऑपरेट होता है तो ये जो लिंक है उसको हिट करेगा और स्विच को क्लोज करेगा। और जो मोटर रन एंड स्टॉप फीडबैक है उसमें सिंपली एक रिले रहता है। तो जैसे मोटर स्टार्ट होता है तो करंट ड्रॉ होगा और करंट के ऊपर से एक रिले एक्ट होगा और वो रिले का जो कॉन्टेक्ट है वो सिंपली यहाँ पे DCS के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा सेंसर, डिजिटल इनपुट सेंसर। फिर नेक्स्ट होता है एनालॉग सेंसर। एनालॉग सेंसर में क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में आता है। वो जनरली DCS के अंदर रीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर है तो उसका वैल्यू आप 0 से लेके 200 डिग्री तक आपको चाहिए, तो 0, 1, 2 ऐसा पूरा एंटायर एक रेंज आएगा। तो ये हो गया आपका एनालॉग इनपुट। ठीक है, तो एनालॉग इनपुट में इन जनरल कोई भी प्लांट में आप जाएंगे तो जनरली 4 टाइप के ही डेटा रहेंगे। तो मोस्टली तो 2 टाइप के डेटा रहते। एक तो RTD से रेजिस्टेंस का डेटा आएगा, या फिर थर्मोकपल से मिलीवोल्ट का डेटा आएगा, या फिर 4 to 20 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करके वो डेटा आएगा। जनरली 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला जो डेटा है उसको हमें 0 to 100 में कन्वर्ट करना रहता है। अब मान लीजिए कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है, उसका रेंज आपने सेट किया है 0 to 10 पास्कल, 10 मेगा पास्कल। ओके, तो जब भी 4 मिली एम्पेयर आएगा उसका मतलब है कि जो लाइन है उसमें प्रेशर 0 है, और जब भी 20 मिली एम्पेयर आएगा तो लाइन का प्रेशर है वो 100 है, सॉरी 10 एम्पियर है। इसके अंदर कुछ टॉलरेंस भी रहता है कि 2% ज़्यादा वैल्यू दिखा सकते हैं। तो ये 10 एम्पियर प्रेशर है, उससे 2% ज़्यादा यानी कि 10.2 तक वैल्यू DCS में दिखा सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे प्रेशर जो है लाइन का वो 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो मिली एम्पियर आएगा वो आएगा 12 मिली एम्पियर। 12 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 50% होगा, इसके जो रेंज है उसका 50% डिटेक्ट करेगा। तो बाकी का जो कन्वर्जन है वो हम DCS के अंदर करते हैं। जैसे DCS ने रीड किया है 0 to 100, तो 0 to 100 में हमें कितना रेंज में कन्वर्ट करना वो हमारे हाथ में। वो हम सिंपली एक K फैक्टर होता है और एक B फैक्टर होता है। K फैक्टर मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके हम 0 to 100 को डिफरेंट यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 0 to 10 एम्पियर रेंज वाला ट्रांसमीटर है, उसका सिग्नल हमने 4 to 20 में कन्वर्ट करके DCS के इनपुट कार्ड में दिया। तो अभी DCS में जब आएगा तब वो हमें वहाँ पे वो 0 to 100 के हिसाब से उसके काउंट मिलेगा। काउंट मतलब जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब आपने शायद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में पढ़ा होगा कि वो एंटायर डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो जैसे मान लीजिए कि 2 बिट होता है तो टोटल
4 स्टेप में डिवाइड करता है, 4 बिट होता है तो 16 बिट में डिवाइड करता है अलग अलग, 8 होता है तो उस हिसाब से, मतलब यहाँ पे हमारा जनरली 64 बिट या 32 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। तो इससे क्या होगा कि 0 to 100 वो काउंट के हिसाब से प्रोसेसर को मिलेगा कि इतने काउंट आए हैं, ठीक है। तो एक काउंट को हमें कन्वर्ट करना है एमपीए में, तो वो काउंट के हिसाब से जो 0 to 100 है, तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली जो के फैक्टर है उसमें हमें 0.1 कर देना है। तो 0.1 करने से क्या होगा, ये हमारे रेंज कितना बन गया 0 to 10, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट यू कैन कन्वर्ट 0 to 100% डेटा इंटू रिक्वायर्ड यूनिट। ओके, थर्ड टाइप का इनपुट होता है वो पल्स टाइप इनपुट होता है। ये जनरली जो एनर्जी मीटर होता है, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसमें क्या होता है कि आपने कितना कंजप्शन किया उस हिसाब से वो पल्स देता रहता है। तो वो पल्स काउंट करके एक्यूमुलेशन होता है कि इतना इतना यूनिट आपका कंजप्शन हुआ है। तो जस्ट लाइक दैट हम इंडस्ट्री में भी इस तरह से एक इनपुट यूज़ करते हैं जो पल्स इनपुट देता है, और पल्स इनपुट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हमें पता लगता है कि कितना टोटल एक्यूमुलेशन होना है। लास्ट है नोड बस। नोड बस में जनरली क्या होता है कि कभी कभी कुछ डेटा ऐसे होते हैं सिर्फ हमें इंडिकेशन पर्पस के लिए चाहिए, उसको हमें कंट्रोलिंग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई डीसीएस रूम का टेम्परेचर हो गया, फिर मान लीजिए कि जो बॉयलर है तो बॉयलर है, ठीक है। अब बॉयलर में मुझे ये हर एक जगह पे टेम्परेचर सिर्फ चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि कोई अनइवन टेम्परेचर का अनइवन प्रोफाइल तो नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बहुत सारे मैंने डेटा लिए हुए, या फिर बॉयलर के अंदर अगर ट्यूब लीकेज भी हो जाता है तो टेम्परेचर का प्रोफाइल चेंज होता रहता है। तो मैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए डीसीएस में सबके डेटा ले लेता हूँ। तो आप मानिए कि इतने सारे डेटा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 200 डेटा है, तो 200 डेटा के लिए मुझे 200 इंटू 3 मतलब टोटल 600 केबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आरटीडी होता है उसमें टोटल 3 केबल है वो डीसीएस तक आता है। तो मुझे अगर मैं आरटीडी से वो डेटा लेता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, 200 इंटू 3 मतलब 600 केबल मुझे डीसीएस तक लाना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो इसकी जगह पे एक अच्छा प्रोविजन है कि नोड बस कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, मतलब कि जो भी डेटा है वो बॉयलर में मैं एक जगह पे ले लूँगा, सब यहाँ पे आएगा आरटीडी। तो 600 केबल पहले इसमें आएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तब ये डेटा पूरा यहाँ पे रीड होगा और सिर्फ नोड बस के 2 केबल से पूरा डेटा डीसीएस में आएगा, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ नोड बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आप डिटेल में आगे गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप सिंपली पढ़ सकते हैं नोड बस के ऊपर। तो यहाँ पे जो 600 केबल मुझे पूरा फील्ड से कंट्रोल रूम तक लाना था डीसीएस तक, वो भी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मुझे फील्ड में सिर्फ एक जो टीबी है, टीबी मतलब टर्मिनल बॉक्स है, वहाँ तक ही 600 केबल लाने हैं। फिर वहाँ से मैं 2 केबल से पूरा डेटा 200 का 200 डेटा डीसीएस के अंदर इनपुट करता हूँ। ओके, किसी को कोई डाउट है पर्टिकुलर एआई में? हेलो, नो सर, कंटिन्यू। ओके, आई होप के सब आरटीडी और थर्मोकपल तो बेसिक फंडा और थियोरेटिकल पढ़े होंगे। उसमें 2 वायर की जगह 3 वायर की यूज होता है, और बाकी फोटो 20 मिली एम्पियर जो है तो हम फोटो 20 मिली एम्पियर में डेटा क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, तो सब बेसिक फंडा तो आप पढ़े होंगे। तो ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं आपके लिए कि आरटीडी 3 वायर यूज करते हैं, या फिर थर्मोकपल के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिली एम्पियर मिली वोल्ट में डेटा आ रहा है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक थर्मोकपल है,
जनरल थर्मोकपल ऐसा ही रहता है, इसके दो वायर हो गए, यहाँ पे टिप बने होगा और ये दो केबल होगी। तो आपको यहाँ मल्टीमीटर से चेक करना है कितना मिलीवोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए अभी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं मिलीवोल्ट चेक करूँगा तो कितना मिलीवोल्ट आएगी? एनीवन? हेलो, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ डायरेक्ट मल्टीमीटर लगा कर, तो क्या होगा? यहाँ पे 0 मिलीवोल्ट आएंगे, क्योंकि ये जो एंड है ये जंक्शन T1 पे है रूम टेम्परेचर पे, और ये जो जंक्शन दो बने वो दोनों रूम टेम्परेचर पे ही है। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप ये वाला जो टिप है इसको गर्म पानी के अंदर, मान लीजिए एक बाउल है, इसके अंदर गर्म पानी भरा है और ये वाला टिप आपने इसके अंदर डुबा दिया, उसके बाद अगर आप मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करेंगे केबल लगा के, तो यहाँ पे आपका 25 डिग्री है एटमोसफियर, और ये ग्लास में जो पानी है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री है। तो 80 माइनस 25 कितना होगा? 45। तो 45 के हिसाब से जो भी टेम्परेचर बनेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो के टाइप थर्मोकपल होता है, तो मोस्टली इंडस्ट्री में के टाइप थर्मोकपल यूज होते हैं, तो उसमें 1 डिग्री पे 0.25 मिलीवोल्ट जनरेट होता है। आप अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। और ये कोई मतलब ये थंब रूल है, एग्जैक्टली 0.25 मिलीवोल्ट नहीं होगा, वो होगा आपका ग्राफ के हिसाब से। आपको जो थर्मोकपल का टेबल है उसके अंदर देखना पड़ेगा कितने टेम्परेचर पे कितना मिलीवोल्ट जनरेट होता है, क्योंकि ये जो है वो कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इस टाइप से नॉन लीनियर इक्वेशन होता है। मतलब ये हम अगर पर्टिकुलर रेंज गिने तो उसके अंदर वो लीनियर बिहेवियर करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट लीनियर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट की बात। तो जितने भी हमारा फीडबैक है वो इसी फॉर्म में आएंगे, या तो DI में आएंगे या AI में आएंगे, और AI में भी आते हैं तो इतने फॉर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि DO, जब हम कमांड देते हैं कोई भी या फिर PID कमांड मिलता है, मैं थोड़ा आपको लूप की तरफ ले जाता हूँ। तो जो प्रोसेस से हमने फीडबैक लिए जितने भी, ये फीडबैक हो गया, फीड वाटर फ्लो हो गया, स्टीम फ्लो हो गया, ये सारे जो ये DCS का बाउंड्री है। तो DCS में कैसे आएगा? अब फीड वाटर फ्लो है तो 4 to 20 मिली एम्पियर में आएगा, स्टीम फ्लो है तो वो भी 4 to 20 मिली एम्पियर में आएगा, ड्रम का लेवल है तो वो भी 4 to 20 मिली एम्पियर में आएगा। अब मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर भी मैं मेजर कर रहा हूँ, जैसे स्टीम फ्लो है ना, तो स्टीम फ्लो मेजरमेंट में टेम्परेचर का करेक्शन देते हैं, तो प्रोसेस में से हम टेम्परेचर का वैल्यू भी लेते हैं, तो टेम्परेचर का करेक्शन और इसका इक्वेशन बना के फिर हम इसका आउटपुट में फ्लो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जनरली ओरिफिस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेजर करता है। ठीक है, ओरिफिस से वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेजर करता है, लेकिन हमें उसको ग्रेविमेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ग्रेविमेट्रिक में अगर कन्वर्ट करना है तो आपका जो लिक्विड है या फिर जो भी फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर डेंसिटी वेरी होगा तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को हम डायरेक्टली ग्रेविमेट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर स्टीम फ्लो है तो स्टीम तो क्या होगा, तो जैसे आपका टेम्परेचर और प्रेशर प्लस माइनस होगा तो स्टीम का फ्लो वेरी होगा, मतलब स्टीम का फ्लो जितना भी हो, लेकिन उसका जो टर्न पर आवर है तो ये हो गया आपका ग्रेविमेट्रिक।
मीन्स के मास अगर मेजर करना है तो इसका डेंसिटी आपका वेरी होगा। तो डेंसिटी वेरी होगा तो आपको उसके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर का वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से जो भी करेक्शन आता है, डेंसिटी के अंदर जो करेक्शन आता है वो डेंसिटी को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा फ्लो कैलकुलेशन के लिए। और वाटर के केस में ऐसा नहीं होगा। वाटर के केस में सिर्फ और सिर्फ हमें ओरिफिस से आए हुए रीडिंग से फ्लो मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मीन्स उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया तो अलग बात है, लेकिन जब तक वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसका डेंसिटी इतना वेरी नहीं होगा। ठीक है, तो जो पीआईडी का आउटपुट है वो जनरली यहाँ से निकलेगा। उसके अलावा हमें कुछ मोटर या फिर कंट्रोल वाल्व, नॉट कंट्रोल वाल्व बट ऑन ऑफ वाल्व, वो सबका जो कमांड जाता है वो जनरली एक पल्स के रूप में जाता है। जैसे ये डीसीएस है तो डीसीएस में से डीसीएस का जो आउटपुट कार्ड है उसमें से एक सिग्नल निकलेगा और एक रिले को ऑपरेट करवाएगा। रिले जैसे ऑपरेट होता है, यहाँ पे एक रिले का कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे जैसी एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि कोई वाल है उसमें 230 वोल्ट दिया है, तो क्या होगा, यहाँ से ये दोनों कॉन्टैक्ट बनेगा तो 230 वोल्ट उस वाल को मिलेगा और वो वाल फर्दर ऑपरेट होगा। ठीक है, सिमिलरली उसको हमें क्लोज करना है तो क्लोज के लिए भी एक अलग से कमांड रहेगा, वो भी डीसीएस से एक रिले में कमांड आएगा और जो रिले है उसका कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा और वो कॉन्टैक्ट से फर्दर जो वाल है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिसाइड हो जाए। सिमिलरली कोई भी मोटर है तो मोटर की स्टार्ट स्टॉप वाली पैनल रहती है, तो पैनल में हम जो यहाँ से कमांड देंगे वो ये रिले का कॉन्टैक्ट है वो पैनल में जाएगा और वो पैनल के अंदर फिर वो फर्दर दूसरी रिले को ऑपरेट करवा के मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट मीन्स स्टार्ट या स्टॉप का कमांड। अगर मान लीजिए कि आपने घर पे ओवरहेड टैंक है, ठीक है, उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, घर पे कंप्यूटर रखा है, आपको सिंपली पंप स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, स्टार्ट का बटन दबाना है, तो जो कंट्रोलर है उसमें से आउटपुट जनरेट होगा, वो जाएगा मोटर में और मोटर में जो भी कॉन्टैक्टर या रिले होगा वो पिकअप होगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्टॉप करना है तो एक स्टॉप का कमांड जाएगा और उस स्टॉप का कमांड फर्दर रिले को ऑपरेट करवा के मोटर को स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से पूरा ये डीओ जो सिस्टम है उसमें सिंपली स्टार्ट एंड स्टॉप का रिले का आउटपुट निकलता है। फिर नेक्स्ट है एओ। एओ का मतलब है एनालॉग आउटपुट। अब एनालॉग आउटपुट में जितने भी एनालॉग कमांड जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में हो गया कंट्रोल वाल्व हो गया या फिर वीएफडी हो गया। वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। कोई मोटर का स्पीड आपको कंट्रोल करना है तो उसका कमांड जाएगा वीएफडी को। ठीक है, वीएफडी का जो इनपुट सिग्नल है वो होगा 4 to 20 मिली एम्पियर। 4 to 20 मिली एम्पियर के हिसाब से जो हमने स्पीड का रेंज सेट किया होगा, तो मान लीजिए कि आपने 100 आरपीएम से लेके 1000 आरपीएम तक सेट किया है, तो उस हिसाब से वीएफडी अपना फ्रीक्वेंसी वेरी करके मोटर का स्पीड कंट्रोल करेगा। ठीक है, वीएफडी के अंदर भी दो चीज़ होती है, इसका एक तो कमांड जाता है मोटर को, मोटर इस हिसाब से अपना स्पीड प्लस या माइनस करती है और मोटर के अंदर टेकोमीटर लगा रहता है और टेकोमीटर का फीडबैक आता है वीएफडी में, जिससे वीएफडी पता लगाता है कि जो मोटर है मैंने कमांड दिया वही कमांड पे वो रोटेट हो रही है। ठीक है, तो एनालॉग आउटपुट में सिंपली 4 to 20 मिली एम्पियर का ही कमांड जाता है। तो ये सब चीज़ है वो क्या है,
ये आपके आईओ कार्ड। जो फील्ड डिवाइस है वो सिंपली जो आईओ कार्ड में आते हैं, तो वो सबके लिए अलग अलग कार्ड रहते हैं। जैसे आरटीडी है तो आरटीडी के लिए अलग कार्ड है, ठीक है। अब आरटीडी के लिए जो कार्ड है, तो कार्ड के अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो मान लीजिए कि आपने ये एक आरटीडी है, उसका 3 वायर आएगा, 2 वायर ऐसे आएगा और एक यहाँ से कॉमन वायर आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा आरटीडी वाला कार्ड है, ये जो पहला कार्ड दिख रहा है, तो इसके अंदर सिंपल एक डिस्टेंस ब्रिज सर्किट लगा होगा, ओके। डिस्टेंस ब्रिज सर्किट लगा होगा, तो यहाँ से जो सप्लाई है वो सब, ये जो पूरा है वो कार्ड के अंदर कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे सप्लाई होगा, मान लीजिए कि 10 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट है, ये हो गया और ये हो गया। तो अभी ये मेरा एक जो ये वाला जो वायर है वो तो हवा में लटकता रहेगी, तो ये ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जो थर्ड वायर है ना वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, वोल्टेज दिए मैंने, ये वाला केबल यहाँ कनेक्ट होता है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे कनेक्ट करें या यहाँ पे, क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये सिंपल केबल ही है, कॉपर वायर, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे 10 वोल्ट दिए और ये पे ग्राउंड है, ठीक है। अब आप देखिए ये वाली सर्किट में एक तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, ये आरटीडी आया, फिर यहाँ से करंट होके यहाँ नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये जो केबल है यहाँ से लेके यहाँ तक का केबल वो फील्ड में से आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का केबल भी फील्ड में से आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का केबल भी फील्ड में से आ रहा है। तो ये जो केबल है उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि 1 से लेके 3 ओम तक रेजिस्टेंस होता है, तो वो पूरा रेजिस्टेंस आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा आरटीडी में। तो इसके अंदर एक्यूरेसी आपकी कम होगी, उसका कंपेंसेशन करने के लिए यहाँ पे 3 वायर आरटीडी यूज़ किया है। वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये आरटीडी है, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। अभी ये फील्ड वाला केबल है, उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि आर एफ, फील्ड से इसमें आर एफ होगा, ये केबल का रेजिस्टेंस आर एफ होगा, इसका भी आर एफ होगा, क्योंकि लेंथ सेम है, केबल सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस मोर और लेस सेम होगा, ठीक है। अब जब ऊपर से यहाँ से करंट आएगा तो ये आर है, आर आर आर, और ये है आर टी डी। आर यहाँ पे सिंपली मैं टी लिख लेता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी होता है। तो ऊपर की लूप में कितना आपका रेजिस्टेंस हुआ, आर प्लस आर एफ, तो नीचे की लूप में आर टी प्लस आर एफ। तो ये जो आर एफ ऊपर है और आर एफ नीचे, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो फील्ड का केबल आ रहा है वो केबल का रेजिस्टेंस आउट हो जाएगा, ओके। सॉरी मैं थोड़ा मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन साइड घुस गया, हमें एक्चुअली डीसीएस का ही डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये जो सारे कंपोनेंट होते हैं, मतलब फील्ड में से लेके डीसीएस के अंदर जो सिग्नल जाता है वो किस तरह से पहुंचता है। तो फील्ड में से जो फील्ड डिवाइस में से सिग्नल आया, सबसे पहले जाएगा टीबी के अंदर, टीबी मतलब टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। आपका अगर आरटीडी होगा तो ऐसे तीन टीबी होगा, 1 2 3, तीनों का केबल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और हर एक इनपुट डिवाइस के लिए जो टीबी है वो अलग अलग डिज़ाइन रहता है। तो ये जो टीबी है पर्टिकुलर वो आरटीडी के लिए है। अगर मिली एम्पेयर वाला होगा तो मिली एम्पेयर वाला का टीबी अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको स्टिकर दिख रहा है ऊपर, स्टिकर के ऊपर डिटेल लिखा होता है कि यहाँ पे आपको केबल का कनेक्शन किस तरह से लगाना है। उसके अंदर मतलब कॉमन है या फिर प्लस माइनस ऐसा इंडिकेशन देते हैं, जो मतलब डीसीएस के अलग अलग डीसीएस में थोड़ा अलग अलग वेरी भी करता है, ठीक है। तो फील्ड में से सबसे पहले डेटा आएगा आपका टर्मिनल बॉक्स में, यहाँ पर मैंने ये लिखा है आपको, सबसे पहले आएगा टर्मिनल बॉक्स में। टर्मिनल बॉक्स में से जाएगा आईओ कार्ड में,
ठीक है। ये तो हमारे केस में अगर मान लेते यहाँ RTD है, तो ये आयो कार्ड जो है वो पर्टिकुलरली RTD के सिग्नल को रीड करे, इस तरह से डिज़ाइन होगा। ठीक है। थर्मोकपल कार्ड है तो थर्मोकपल का सिग्नल वो रिसीव करे, उस हिसाब से वो डिज़ाइन होगा। ठीक है। थर्मोकपल का सिग्नल आएगा मिली वोल्ट में, और अगर 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला सिग्नल है तो 4 to 20 मिली एम्पेयर वाले सिग्नल को रीड कर सके, इस तरह से वो डिज़ाइन होगा। ठीक है। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर वाले केस में यहाँ पे एक्चुअली 3 TB देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई 2 वायर RTD है, सॉरी 2 वायर ट्रांसमीटर, 2 वायर और 4 वायर वाला मैंने फंडा भी लास्ट सेशन में थोड़ा समझाया था कि ट्रांसमीटर को हमें अलग से पावर सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलेंगे 4 वायर, क्योंकि 2 वायर आपको पावर सप्लाई के लिए चाहिए और 2 वायर सिग्नल के लिए। ठीक है। अगर 2 वायर ट्रांसमीटर है तो 2 वायर का जो सप्लाई है वो डायरेक्टली DCS में से ही मिल जाएगा। तो DCS में यहाँ पे ऐसा प्रोविजन रहता है कि मान लीजिए कि आपको 2 वायर कन्फिग्रेशन यूज़ करना है तो डायरेक्टली आपको पहले 2 TB में यूज़ करना है, तो जिसके अंदर आपका 24 वोल्ट वाला सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ट्रांसमीटर को देंगे और ट्रांसमीटर सिग्नल ये दोनों केबल में वापस भेजेंगे। अगर ये ट्रांसमीटर को आप अलग से पावर अप कर रहे हो, मतलब कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से 24 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पे कनेक्ट करना है और जो दूसरा सिग्नल का केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला सिंपली निकल जाएगा। तो ये जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें पहले मतलब अलग अलग DCS में अलग अलग रहता है। इसमें 2 कनेक्शन है वो 2 वायर के लिए यूज़ होते हैं और बाकी के 2 कनेक्शन 4 वायर कन्फिग्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है। अभी ये केबल से ये सिंपली एक केबल ही है और कुछ नहीं, लेकिन ये सब केबल को एक साथ कनेक्ट करके इसके अंदर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आयो कार्ड है, आयो कार्ड का क्या करेगा, तो जो भी डेटा आया है वो सर्किट के हिसाब से उसका एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करके इसके अंदर भी एक प्रोसेसर लगा रहेगा छोटा सा। वो प्रोसेसर सिंपली डिजिटल फॉर्म में मेन प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करेगा। ये आप यहाँ पे प्लेट देख रहे हैं, वो प्लेट के पीछे ऐसे कनेक्शन रह रहे हैं। जैसे यहाँ आप ये जो एक कार्ड है वो उसको यहाँ पे बिठाएंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड रहते हैं, जैसे ये एक कार्ड हो गया, ऐसा दूसरा तीसरा, ऐसा इस ये प्रोसेसर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम 4 या कोई तो प्रोसेसर में 8 भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसका डिज़ाइन होता है। और ये सब जो मॉड्यूल है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे आप एक पिन देख सकते हैं, सब एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो वो इस तरह से बनता है। ये आपका हो गया प्रोसेसर, मैं इसको सिंपली P लिखता हूँ। प्रोसेसर के साथ एक केबल कनेक्टेड है और यहाँ पे डिफरेंट आपके आयो मॉड्यूल कनेक्ट है। ठीक है। ये RTD का हो गया, एक थर्मोकपल का हो गया, एक 4 to 20 मिली एम्पेयर के लिए हो गया, पल्स के लिए हो गया। तो सब सिग्नल का कम्युनिकेशन प्रोसेसर में होगा। ठीक है। ये तो इनपुट की बात होगी। सेम यही केबल पे आपके आउटपुट मॉड्यूल भी कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए DO कार्ड कनेक्टेड है, यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला ये वो कार्ड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सिग्नल यही केबल से जाएगा प्रोसेसर में, और प्रोसेसर में आपने जैसे लॉजिक बनाया है उस हिसाब से उसका एक कमांड जनरेट होगा। वापस यहाँ पे आके एक कमांड जाएगा DO कार्ड में। DO कार्ड फिर क्या करेगा, तो फाइनली जो फील्ड में जो भी प्रोसेस है उस हिसाब से ऑपरेट करेगा। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला आउटपुट है तो क्या करेगा, कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करवाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर का एरो दिखा है, सिंपली ऐसे नीचे का एरो भी आएगा कि प्रोसेसर से आयो कार्ड में पहले आएगा कमांड, फिर वो आयो कार्ड से टर्मिनल बॉक्स में जाएगा। टर्मिनल बॉक्स में जो केबल लगे वहाँ से वो फाइनली जो फील्ड में डिवाइस लगा वहाँ पे कमांड जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से होता है सिग्नल फ्लो। समझ में आ रहा है ना सबको? यस। तो अब हम फर्दर देखते हैं कि ये जो प्रोसेसर है, कोई भी बड़े प्लांट में कोई एक प्रोसेसर से पूरा प्रोसेस कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पर्टिकुलर एक फॉक्सबोरो का DCS है और फॉक्सबोरो का ये
जो प्रोसेसर है उसका मॉडल है आपका FCP270, ठीक है। तो FCP270 में हम ऐसे 4 टोटल लगा सकते हैं। तो एक में 8 आते हैं टोटल, तो 8 इंटू 4 तो कितने हो गए 32। मीन्स कि आप टोटल 32 सिग्नल को 32 कार्ड को लगा सकते हैं। तो एक कार्ड में मान लीजिए कि आपके 8 सिग्नल आ रहे हैं, एक के अंदर 8 चैनल होती है। जैसे ये एक कार्ड हो गया, टोटल 8 आरटीबी को रीड करेगा। दूसरा कार्ड हो गया, वो 8 ट्रांसमीटर को रीड करेगा। तो ये कार्ड हो गया तो 8 डीआई को रीड करता है। तो 32 इंटू 8 मीन्स 128 सिग्नल को ही रीड कर रहा है, मतलब हैंडल कर रहा है। तो उसमें से कुछ ए हो गए, कुछ ए हो गए, डीआई डी हो, ठीक है। तो एक प्रोसेसर हमारा मैक्सिमम 128 के आसपास ही सिग्नल को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पावर प्लांट के अंदर टोटल 5000 आईओ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो 5000 आईओ के लिए मुझे डिफरेंट ऐसे काफ़ी सारे प्रोसेसर चाहिए। तो ये सभी प्रोसेसर अभी यहाँ पे जो सिग्नल आया वो यहाँ ये सिस्टम तो कंट्रोल कर ही रहे, लेकिन कभी कभी इंटर रिलेशन भी होता है कि ये जो सिग्नल आया वो दूसरे प्रोसेसर में यूज है। तो ये वाला हम कैसे करेंगे कि ये जो प्रोसेसर है आपका, सभी प्रोसेसर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है नेटवर्क। आजकल आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसमें भी सेम सिस्टम होता है कि आपका कंप्यूटर कोई सर्वर वाला कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट है और आप उसके डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई आपका डेटा भी यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से DCS में भी सिस्टम होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 4 प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। तो प्रोसेसर में भी रिडंडेंसी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ए प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर है। तो ये दोनों प्रोसेसर एक्चुअली एक दूसरे के रिडंडेंट होते हैं। अगर मान लीजिए कि बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रोसेसर में फॉल्ट आ गया, तो ये प्रोसेसर पूरा का पूरा जो भी कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कभी भी फेल हो सकते हैं। वैसे आजकल जो मॉडर्न DCS होते हैं उसके जो प्रोसेसर है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी एक रिडंडेंसी होना जरूरी है। तो ये दोनों प्रोसेसर का टोटल 2 केबल निकलता है, क्योंकि हम नेटवर्क की भी रिडंडेंसी रखते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये एक ए नेटवर्क और बी नेटवर्क, तो सबको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए टोटल 2 केबल निकलेंगे और सब 2 अलग अलग नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब एक कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो स्विचेस से होता है। ये सिंपल स्विच आपने देखी होगी, अगर आपने घर पे वाईफाई या कुछ लगाया है तो वहाँ पे भी ऐसी स्विच यूज होती है। तो सिंपली ये जो केबल है वो एक इसमें कनेक्ट होगा और एक इसमें कनेक्ट होगा। मतलब एक हमारा ए नेटवर्क हो गया और एक बी नेटवर्क हो गया। और नेटवर्क में भी अलग अलग टोपोलॉजी रहती है। जैसे आपका मैश नेटवर्क रह गया, मान लीजिए कि एक कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाना है, जैसे इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो ये हो गया मैश नेटवर्क। या फिर रिंग टोपोलॉजी भी यूज होती है, तो ये हो गई रिंग टोपोलॉजी। तो इस तरह से हम डिफरेंट नेट यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रिडंडेंसी के लिए दूसरा रिंग होगा, ये यहाँ पे केबल लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा। सिमिलरली मैश नेटवर्क में भी अगर रिडंडेंसी आपको चाहिए तो एक दूसरा नेटवर्क होगा जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब नेटवर्क रिडंडेंसी क्यों चाहिए? अगर मान लीजिए कि बाई चांस कोई भी एक केबल कट हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका केबल कट हो गया, तो ये पूरे जो प्रोसेसर का कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसीलिए हमें रिडंडेंसी भी चाहिए। अब ये कंट्रोलर है वो कंट्रोल तो करेगा, लेकिन ऑपरेटर को वो सब चीज़ पीसी पे दिखना भी चाहिए कि फील्ड के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। अगर आप मॉडर्न जितने भी प्लांट है आप देखेंगे तो पूरा इतना बड़ा प्लांट सिर्फ 2 या 3 ऑपरेटर से ऑपरेट होता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले हर एक चीज़ के लिए अलग से ऑपरेटर चाहिए होता है। तो आजकल जो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है उससे जो मैन पावर है वो भी बहुत कम चाहिए।
ठीक है। तो ये जो पीसी के अंदर जो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो भी फील्ड से डेटा आया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर या फिर कुछ कमांड भी जा रहा है, तो सभी डेटा का रिफ्लेक्शन आपको पीसी में मिलेगा। तो ये पीसी में रिफ्लेक्शन कब मिलेगा? तो यहाँ से डेटा आपको चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है वो पूरा इस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मैंने एक नेटवर्क ले लिया, ये एक स्विच में कनेक्टेड है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये दूसरी स्विच में कनेक्टेड है। ठीक है। अभी ये सब प्रोसेसर एंड कंप्यूटर सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। तो कोई भी डेटा इधर से उधर जा सकता है, और यहाँ से जो ऑपरेटर कमांड देता है या फिर उसको सिग्नल दिखाई देता है, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे डेटा रीड करके वहाँ पे हम ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये सिंपली मैंने एक एग्जांपल के लिए एक लिया है डेटा, ये टरबाइन है, यहाँ पे जनरेटर है, कितना मेगावाट जनरेट हो रहा है। तो डीसीएस में तो सब डेटा आ रहा है, प्लस यहाँ पे कितना लेवल है, यहाँ पे आप एक वेंचुरी टाइप का देख सकते हो, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है। फिर ये टरबाइन है तो उसके आरपीएम कितने हैं, तो यहाँ पे आरपीएम दिखाएगा। तो इस तरह से ग्राफिक्स है, वो ग्राफिक्स पूरा मतलब वन टाइप ऑफ एचएमआई हो गया। एचएमआई का मतलब है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। जो लोगों ने पीएलसी सीखा है उनको पता होगा कि एचएमआई का एक स्क्रीन आता है अलग से, जिसके अंदर आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो ग्राफिक्स है वो एज एचएमआई का काम करेगा, ये ह्यूमन एंड मशीन के बीच में इंटरफेस के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है हिस्टोरियन। तो जितने भी डेटा आ रहे हैं इनपुट या आउटपुट, वो सभी डेटा हिस्टोरियन सॉफ्टवेयर में सेव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए एक लिया है, और जितने भी डेटा आते हैं उसका आप ऐसे ट्रेंड निकाल सकते हैं। ट्रेंड मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके आप एक कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये डेटा कैसे वेरी हुआ है। थर्ड है आपका जो कंप्यूटर है, अगर आपको कोई कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम चेंज करना होगा तो वो कंप्यूटर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेटर है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे कॉलेज में पीएलसी है, पीएलसी कंट्रोलर है, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम डालते हैं तो कहाँ से डालते हैं? जो पास में जो पीसी पड़ा है वो पीसी से आप प्रोग्राम डालते हो। पीएलसी के अंदर प्रोग्राम रहता है लेटर लॉजिक में, लेकिन डीसीएस में अलग अलग मैन्युफैक्चरर की अलग अलग लैंग्वेज रहती है, और जनरली यूज होता है एफबीडी। एफबीडी मतलब फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर है डीसीएस के, उसके हिसाब से वो अपना नाम अलग अलग देते हैं, लेकिन सिंपली वो दिखता ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में है। आप उसको नॉर्मली जो कॉमन नाम देना है तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं पीएनबीडीएफसी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम पीएलसी और डीसीएस का थोड़ा डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू में पीएलसी और डीसीएस के बीच के डिफरेंस को जनरली नॉलेज जानने के लिए पूछते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो दोनों कंट्रोलर ही है, दोनों के बीच में कोई ऐसा क्लियर कट डिफरेंस नहीं है कि ये चीज़ मतलब ये है, ये चीज़ मतलब ये है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि जो डीसीएस है वो पूरे बड़े प्लांट के लिए यूज होता है, और जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसका पूरा एक पैकेज होता है। मान लीजिए फोक्स बोरो है तो फोक्स बोरो पूरी चीज़ सप्लाई करेगा, कि पीएलसी के केस में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपको पीएलसी सप्लाई करेगा और साथ में उसका जो प्रोग्रामिंग करना है लैडर का वही सप्लाई करेगा। अब आपको ह्यूमन मशीन इंटरफेस करवाना है तो उसके लिए एचएमआई अलग से लेना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर में देखना है तो कंप्यूटर के लिए स्काडा का सॉफ्टवेयर आएगा, तो स्काडा सॉफ्टवेयर अलग से लेना पड़ेगा। और आजकल एलन ब्रेडली जो कंपनी है उसने अपना खुद का भी एक सॉफ्टवेयर निकाला है, फैक्ट्री टॉक भी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर iFix का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो पीएलसी है उसमें आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो पैनल है उसमें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करके पीएलसी कोई भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलन ब्रेडली, सीमेंस या फिर टेलीमेट्रिक्स, ये सब अलग अलग पीएलसी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन डीसीएस के केस में क्या होता है कि अगर आपने डीसीएस का हार्डवेयर लिया है तो आपका पीसी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रहेंगे, हिस्टोरियन रहेगा या फिर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर रहेगा, या फिर आप सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर रहेगा, सभी सॉफ्टवेयर डीसीएस
मैन्युफैक्चरर जो है उसका ही सॉफ्टवेयर रहेगा। तो मेन डिफरेंस तो वही है कि पीएलसी जो है वो डेडिकेटेड स्मॉल सिस्टम के लिए जनरली यूज होता है, और डीसीएस है वो एंटायर प्लांट के सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए यूज होता है। ठीक है। और पीएलसी जो है वो एक हार्डवेयर एंड कॉन्फ़िगरेटर सॉफ्टवेयर के साथ में आता है, और डीसीएस है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी तरह के सॉफ्टवेयर के साथ में आता है। जबकि पीएलसी में सिर्फ आपका एक हार्डवेयर आएगा और जो आपको प्रोग्रामिंग करना है वही सॉफ्टवेयर आएगा, जबकि डीसीएस के अंदर हार्डवेयर एंटायर जो जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए सब सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है। लेकिन आजकल जो एलन ब्रेडली पीएलसी है वो उसमें अपना डीसीएस भी निकाला, और वो डीसीएस सिंपली आप जो पीएलसी देखते हैं वही पीएलसी का ही डीसीएस बना दिया है। क्योंकि सिंपली करना कुछ नहीं है कि अलग अलग पीएलसी को ज्वाइन करके उनको नेटवर्क बना के सेंट्रलाइज सिस्टम कर देना, तो वो अल्टीमेटली पीएलसी है वही डीसीएस बन गया। ठीक है। तो यही थे बेसिक डिफरेंस। अभी नेक्स्ट सेशन है क्वेश्चन आंसर राउंड। तो आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू डीसीएस, रिगार्डिंग टू पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम, या फिर जनरल कोई डाउट है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल थियरी में कोई डाउट है, और या फिर इंटरव्यू के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। Sir, here is the one question from Parmar Devanshi. What is the difference between HMI and SCADA? स्काडा एक्चुअली वन टाइप ऑफ एचएमआई है, लेकिन स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। और एचएमआई में क्या होता है, एक हार्डवेयर आता है, और हार्डवेयर में हम प्रोग्रामिंग करके उसको एज ए एचएमआई यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी ने फैक्ट्री में या फिर कोई इंडस्ट्रियल विजिट किया होगा तो आप देख सकते हैं कि कोई सिस्टम होता है, उसके ऊपर एक स्क्रीन जैसा लगा रहता है, और वो स्क्रीन में आप एक ग्राफिक्स जैसा बनाया होता है और वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको, तो वो हो गया एचएमआई। ठीक है। एचएमआई मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो जनरली उनको एचएमआई को वो जो स्क्रीन है उसको एचएमआई बोलते हैं, और जो स्काडा है वो सॉफ्टवेयर जो आता है अलग से। मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है वो तो हार्डवेयर कोई भी होगा, एचपी, डेल, ऐसे कोई भी हार्डवेयर होगा, लेकिन स्काडा जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। और स्काडा हम मोर और लेस एचएमआई बोलेंगे, क्योंकि स्काडा का काम क्या है, वो भी ह्यूमन मशीन इंटरफेस ही करवाता है। तो ये जो नाम है उसके अंदर में आप कंफ्यूज मत होइए, अल्टीमेटली उस सबका काम एक ही है कि जो फील्ड में से जो सिग्नल आया उसको आप स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं, और वहाँ पे आप कमांड देके ऑपरेट भी कर सकते हैं। Any other doubt? आई थिंक एक शंकर सर करके कोई ज्वाइन हुए, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन फील्ड में। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, sir, please. ओके, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो अभी मुझे अकेले अकेले बोलना पड़ेगा,
क्योंकि आई थिंक कोई स्टूडेंट चालू करके फिर कहीं चले गए. हेलो यस. सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट अभी आपने वो मीन्स ट्रांसमीटर के बारे में समझाया, 2 वायर एंड 4 वायर मीन्स गए लेक्चर में. तो सर आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इफ द पावर सप्लाई कनेक्शंस टू अ 2 वायर ट्रांसमीटर गेट इंटरचेंज, तो क्या वो सिग्नल सप्लाई करेगा डीसीएस को? मतलब कि केबल को रिवर्स कर देना है सर. हाँ, मतलब अभी अभी जैसे आपने बताया कि 2 वायर ट्रांसमीटर में एक वायर कॉमन रहेगी जिसका पावर सप्लाई ट्रांसमीटर को भी जाएगा एज वेल एज पीएलसी को भी जाएगा, और दूसरा है जो ट्रांसमीटर से डायरेक्टली पीएलसी को सिग्नल जाएगा. तो सर वो 2 वायर अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो मतलब सिग्नल जाएगा डीसीएस को सर? जी नहीं, इसमें अगर 2 वायर कॉन्फ़िगरेटर में आप सिग्नल 4 वायर वाले कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे तो सिग्नल नहीं मिलेगा. ओके. हेलो यस. यस मयूर टंडन. सर, यस. आवाज़ नहीं आ रही यार. सर, हेलो. यस. यस. आई कैन हियर यू. सर, एक क्वेश्चन है. जैसे पीएलसी है और सारा होगा सर, तो जो मोटर है और जितने भी फील्ड में पंप और मोटर है, वो जो पीएलसी है वहाँ से सीधा कमांड जाएगा. और उसके लिए सर अभी जब ज़्यादा मोटर और पंप होंगे उसके लिए एक सब स्टेशन होगा और वहाँ पे रिले होगा. और रिले और फीडर, आई थिंक फीडर, और यहाँ से पीएलसी में कमांड देगा मोटर के लिए और स्टार्ट स्टॉप के लिए. तो यहाँ से हम स्टार्ट देंगे तो जो फीडर है वहाँ पे रिले होगा, वहाँ तक इंस्ट्रूमेंट का पास रहेगा सर. और वहाँ से जो फील्ड में मोटर है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से स्टार्ट देंगे तो फील्ड में मोटर स्टार्ट होगी. और जैसे स्टॉप करेंगे स्टॉप होगी. उसके बाद रनिंग का भी इंडिकेशन हमारे जो डिजिटल इनपुट लेंगे हम लोग वो मोटर का ये कनेक्शन वो भी सर. और सर दूसरी एक कंफ्यूजन है कि अगर स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं तो सर उसके फेलियर होगा और ओवरलोडिंग कुछ भी इंडिकेशन भी ले सकते हैं ना. यस. उसमें जो फेलियर है सबका इंडिकेशन नहीं, अरे सर. फीडर के अंदर ही बनाया होता है और एक फॉल्ट सिग्नल करके आता है जो हम डीए के फॉर्म में डीसीएस में लेते हैं. तो अगर मोटर के अंदर जो मोटर की पैनल है फीडर पैनल जिसको फीडर बोलते हैं उसके अंदर कोई भी फॉल्ट होगा, मान लीजिए ओवरलोड हो गया है या फिर कोई और माल फंक्शन हुआ है, तो उसका जो एक रिले है वो रिले में वो रिले एक्ट होगा फॉल्ट सिग्नल वाला और हमें डायरेक्ट डीसीएस में दिखाएगा कि इस मोटर के फीडर में कोई प्रॉब्लम है. जैसे मान लीजिए आपने कमांड दिया और वो मोटर ऑपरेट नहीं हुआ तो भी एक फॉल्ट सिग्नल आएगा कि स्टार्ट कमांड दिया है मोटर स्टार्ट नहीं हुआ. यस सर. आर यू गेट द आंसर? सर, I have a general question. अगर मतलब किसी स्टूडेंट को जिसको ऑटोमेशन साइड में जाना हो तो उसको कौन से टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स एंड पीएलसीज मतलब कौन सी इंडस्ट्री में मोस्टली यूज्ड होते हैं पीएलसीज और डीसीएस सिस्टम्स जो उनको सीखना चाहिए या ट्रेनिंग लेनी चाहिए? ओके, नाइस क्वेश्चन. अगर आपको ऑटोमेशन साइड जाना है तो जो जनरली कोर्स बाज़ार में चलते हैं वो जनरली पीएलसी के कोर्स आप कर सकते हैं. बाकी जो डीसीएस है उसका कोई अलग से पर्टिकुलर कोर्स मैंने आज तक नहीं देखा है. वो आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तभी आप वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाएंगे वहाँ से आप सीख सकते हैं. तो अगर आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके सीखना है तो एलन ब्रेडली एंड सीमेंस का ये दो पीएलसी वेरी फेमस है. तो ये दोनों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, पीएलसी कैसे काम करता है वो सीख सकते हैं. एंड ये दोनों का एचएमआई के साथ इंटरफेस कैसे करना है वो भी सीख सकते हैं. और दूसरा है कि जब आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते हैं, आप कौन से ईयर में हैं अभी? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ एंड आई हैव वर्कड विद मित्सुबिशी पीएलसीज एंड एलन ब्रेडली का आरएस लॉजिक्स किया है यूज और इंटरफेस भी है एचएमआई के साथ. ओके.
मतलब एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। ओके, समझ गए। तो लास्ट ईयर में जो प्रोजेक्ट आएगा आपका, तो आई होप के जो प्राइमा ऑटोमेशन है और हाँ। एक मेसिबस, ये सब क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप कैसे भी करके कांटेक्ट करके या फिर कॉलेज का रेफरेंस लेके वहाँ पे अगर ट्रेनिंग करेंगे तो वो लोग आपको थोड़ा, इंटर्नशिप। हाँ, तो इस आपको थोड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा और आप पीएलसी और डीसीएस का जो एक्चुअल में नॉट डीसीएस, ओनली पीएलसी, पीएलसी एंड एचएमआई स्काडा का कैसे आप काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल में सीख सकते हो। और ज़्यादातर जिन स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उनके चांसेस ज़्यादा है कि वो सिलेक्शन होगा उसका इंटरव्यू में। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। यस मेरी। सर जैसे टरबाइन है सर, तो इस जो टरबाइन है मैंने देखा है सर, और जो बेंटो न्यूरा है सर, बेंटो न्यूरा आई थिंक यही नाम है, वो उसमें मार्कशीट सिस्टम कुछ है सर। तो सर यहाँ कुछ इंडिया में कुछ सीख से कुछ। क्या आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया? आप एक्चुअली अभी लास्ट ईयर में है या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो सिर्फ सर, मतलब मैंने देखा और थोड़ा नॉलेज है मुझे, इसलिए पूछा। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे टरबाइन है सर, टरबाइन और जो कंप्रेसर है सर, बिग टरबाइन, तो उसके लिए प्रैक्टिकल जो जो कंपनी है एलियन ब्रेडली, और उसके साथ ऑयल एंड गैस का जो सर जो सिस्टम है मार्क 6 करके सर, मार्क 6 करके, मार्क 5 और मार्क 6 करके, इसके लिए कुछ इंडिया में सर प्रोवाइड है सर। एक्चुअली टरबाइन में एलन ब्रेडली सिस्टम है ना, एक टरबाइन इमरजेंसी ट्रिपिंग सिस्टम करके यूज होता है। तो जो डीसीएस सिस्टम है वो तो मेन कंट्रोलिंग कर ही रहा है। अगर इन केस पूरा डीसीएस सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, और आपका जो टरबाइन है वो उसका रोटेशन है वो स्टॉप नहीं हुआ, तो वो एक अनसेफ कंडीशन बन सकती है। और किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि डीसीएस सिस्टम है, कोई भी रीजन से पूरा डीसीएस ही फेल हो गया, तो टरबाइन का जो प्रोटेक्शन है वो एक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में एक अलग से पीएलसी का सिस्टम दिया रहता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम। तो अगर आपका पूरा डीसीएस फेल भी हो गया ना, फिर भी बॉयलर एंड टरबाइन सेफली शट डाउन हो जाएंगे। शट डाउन हो जाएंगे मतलब बंद हो जाएंगे। और ऐसा सेम रिफाइनरी के केस में और अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, और एक मैं थोड़ी जनरल एडवाइस देना चाहूँगा स्टूडेंट को कि आप टेक्निकल चीज़ तो सीख ही रहे होगे, साथ में आप अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिए। और जब भी कभी कम्युनिकेशन करने का मौका मिले किसी के साथ भी, तो आप कम्युनिकेट करना चालू कीजिए। अभी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बोले। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके जो आइडियाज़ है, टेक्निकल आइडियाज़ है या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड आइडिया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए या फिर अपने प्रोफेसरों के साथ शेयर करिए। तो जितना आप कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे, उतना ही आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाएंगे कि यू आर एबल टू वर्क फॉर प्रोफेशनल लाइफ। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान दीजिए। और एक दूसरा चीज़ भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है वो लास्ट में जो एग्ज़ाम आती है, मतलब कि जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो उससे पहले एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो उसके प्रिपरेशन नहीं करते हो या फिर कैजुअल प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे जस्ट कैजुअल प्रिपरेशन ना करिए, आप थोड़ा अच्छी तरह से एग्ज़ाम क्लियर कर पाए उस तरह से प्रिपेयर करिए। और वो जो एग्ज़ाम है वो जनरली उसमें मैथमेटिकल या फिर एनालिटिकल स्किल आपकी टेस्टिंग होती है, तो आपकी एनालिटिकल स्किल भी डेवलप करिए। जैसे आजकल बहुत सारे पजल्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि पजल्स ऐसे सोल्व करते हैं, तो जिससे आपका एक एनालिटिकल माइंड डेवलप होगा। तो
के सब इस डायरेक्शन में थोड़ा प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सबको पता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। और दूसरा है कि कुछ स्टूडेंट्स है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फिट नहीं होता है कि वो कोई कंपनी में इंटरव्यू देके बैठ पाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बैच में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसके 60% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, और वो लोग कोई भी कंपनी में बैठ भी नहीं पाए थे, फिर भी आज 9 साल के बाद बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे मैं 2-3 लोगों का एग्जांपल दूँ तो एक जो है वो अपने क्लासेस चलाता है, इंजीनियरिंग के क्लासेस। अब मान लीजिए कि जिस स्टूडेंट के 60% से नीचे आए तो वो इंजीनियरिंग के क्लासेस कैसे ले सकते हैं। तो ये मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि कुछ ना कर सके। अगर आप अपने आप से सीखते हैं, सेल्फ लर्निंग करते हैं या सेल्फ एजुकेटेड करते हैं, तो कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे इंजीनियर ऐसे भी है कि जो फाइनेंस की फील्ड में गए, तो वहाँ से फाइनेंशियल नॉलेज, सेल्फ एजुकेशन लेके वो फील्ड में भी आगे बढ़ गए। कोई स्टूडेंट ऐसे हो गए कोई डिफरेंट फील्ड में गए, जैसे एक मेरा फ्रेंड है जो वीज़ा वाली फील्ड में गया कि वो सबको वीज़ा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आजकल उसका भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका परसेंटेज कम है मतलब आपके अंदर की स्किल कम है। अगर आपके अंदर स्किल है और आप अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड कर रहे हैं कोई भी फील्ड में, तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन सेल्फ एजुकेशन ज़रूरी है। अगर सेल्फ एजुकेट नहीं कर रहे तो आप कितने भी अच्छे परसेंटेज लाए और सिर्फ घर पे बैठ गए, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना छोड़ दिया, इवन जॉब के बाद भी अगर सेल्फ एजुकेट करना छोड़ दिया तो आपका ग्रोथ वहीं पे ही स्टेबल हो जाएगा। और सेल्फ एजुकेशन के लिए मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि आप अच्छे अच्छे ऑथर है जिसने इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको रीडिंग का शौक़ होगा। अगर किसी को रीडिंग का शौक़ नहीं है तो वो समरी वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर ट्राई करिए कि आप अच्छे अच्छे ऑथर की बुक्स पढ़ें, क्योंकि ये बुक्स पढ़ने से आपका जो माइंड है वो थोड़ा ओपन अप होगा। जनरली स्टूडेंट्स लाइफ में क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं कि इंजीनियर बनूंगा, कोई कंपनी में जॉब मिल जाएगा तो मेरा फिक्स हो गया और बात ख़त्म। एक्चुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ जॉब ही आपका गोल नहीं होता। आपको अपना माइंड को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा और लाइफ को थोड़े डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। तो जितने भी सारे अच्छे अच्छे ऑथर है जो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उस बुक्स में लिखा है, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस आप डायरेक्टली उस बुक से रीड करके और उसकी लाइफ से आप कुछ सीख सकते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाइए। सो एनी अदर क्वेश्चन या फिर हम वाइंड अप कर ले लास्ट में? सर लास्ट क्वेश्चन, यस। फॉर प्लेसमेंट इंटरव्यूज एज एन आईसी स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स? एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट सबसे पहला स्ट्रॉन्ग हमें इंस्ट्रूमेंटेशन साइड, यानी कि जितने भी फ्लो सेंसर है, आरटीडी, थर्मोकपल, वो सब तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप बीजेटी, मॉसफेट वो सब करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड अदर देन दैट आप जो मैंने नेटवर्क वाला सिखाया कि नेटवर्क कैसे काम करता है, तो जो थियोरेटिकल नेटवर्क हम पढ़ते हैं उसके अलावा अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली जैसे घर पे वाईफाई सेटअप करते हैं या फिर थोड़े बड़े लेवल पे वाईफाई सेटअप किया तो उसमें नेटवर्क कैसे काम करता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप सीखते हैं तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जितने भी लोगों ने एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम किया है और इंटरव्यू को आप अगर अपने प्रोजेक्ट की तरफ खींच जाते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे आपने एक ही ऐसा काम किया है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, वो है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो आप अपना वहाँ पे शो ऑफ कीजिए कि आपने ऐसा काम किया है और आई एम कैपेबल टू वर्क इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू सर।